جی خداوند یسوع مسیح کی دعوت سنو، اے محنت اٹھانے والے اور بہت سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ مقدس پالوس رسول فرماتے ہیں کہ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گنہگار کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا۔ مقدس یوحنا رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ قائد مطلب خدا ہمارا آسمانی باپ جس نے اپنی بڑی رحمت سے سب سے اپنے بھائی بہنوں بچوں کو معاف کر کے دلی توبہ اور سچے ایمان سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا ہے۔ وہ ہم سب پر رحم کرے، ہمارے سارے گناہوں کو بخشے اور ان سے ہمیں رہائی دے اور ہر طرح کی نیکی میں ہم سب کو مستحکم و مضبوط کرے اور ہمیں ابدی زندگی تک پہنچائے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ سیاقت کرنچن کی تو کتاب جہاں بیٹھے ہیں گیتوں کی کتابیں موجود ہیں، خداوند کی شکر گزاری کرتے ہوئے زبور نمبر 22 گائیں گے۔ یاد یہوہ دی سب کرن گے گڑے ساری دنیا دے، جلد نام جلہ بندے کے پاک خداوند۔
جن کے بچے میٹرک اور FAC میں پاس ہوئے گزرے سارے دنوں کے لیے، موجودہ حالات کے لیے خدا ان کا شکر کرے۔ چند الفاظ میں شکر گزاری کی دعا میں کوئی بھی رہنمائی کر سکتا ہے۔ آئے ہم دعا مانگیں۔ ہم سب خدا موجودی ہونے کے لیے خدا ایک ایک کے لیے خدا پورا ہفتہ زندگی دیا، زندگی کے ساتھ صحت دی، اور خدا آپ کا گھر کو آ سکے خدا اس کے لیے آپ کا شکر کرتے ہیں۔ جتنا ہم یہاں موجود ہے خدا ایک ایک کے لیے خدا آپ کا شکر کرتے ہیں۔ جو آنے والے ہیں خدا ارادہ رکھتے ہیں وہ کلیے خدا آپ کو شکر کرتے ہیں خدا اس وقت خدا جو میٹرک اور خدا FSC کا خدا انہوں نے خدا ایگزام دیا بچے، اور خدا ان کو آج ان کا رزلٹ آنے والا ہے خدا بچوں کے لیے خدا آپ کو پاک لوگوں میں کر دیتے ہیں خدا جتنے بچے کامیاب ہوئے خدا اور مزید ان کو برکت دینا خدا جو بچے رہ گئے خدا ان کو خدا اپنے اسٹرگل کے لیے خدا ان کو تیار کرنا خدا اور یہ بچے خدا اس ملک پہ خدا آپ کا نام کو جلال دے سکے خدا ایک ایک کے لیے چھو لینا خدا آپ کا خادم آپ کو آئے خدا سب کو خدا آپ کو پاک میں کر دیتے ہیں خدا ان کو صحت دینا، تندرستی دینا، اور اسی طرح خدا آپ کو پرستش کرتے رہے اور خدا آپ کا نام کو چلاتے رہے آپ کا خادم تب ہم کو خدا اچھی اچھی باتوں کو اچھی خلاف کو خدا ہمارے تک پہنچاتے ہیں خدا آپ کا خادم کو چھو لینا اور برکت دینا، اور فیملی کو بھی خدا آپ کا ہاتھ دینا، ایک ایک کا چھو ایک ایک کا بلس کرنا یسوع المسیح کے نام سے آمین۔ یہ صحیح سے ہوگا۔ آپ کے سامنے جو بائبل پڑھی ہے آپ ضرور کھولیں۔ پرانی بائبل میں صفحہ نمبر 690 690 پرانی بائبل جو آپ کے سامنے پڑھی ہے صفحہ نمبر 690، یہ نبی کا صحیفہ 38واں باب پہلی آیت سے 8ویں آیت تک۔ خدا ان کے خادم ہیں پاسٹر رویز اقبال جو ہمارے لیے تلاوت کریں گے۔ نئی بائبل میں صفحہ نمبر 878۔ سر میں بات بتاؤں گا ابھی بیٹھے۔ صفحہ نمبر 878 878 جو نئی بائبل کا پیج ہے عیسیٰ نبی کے صحیفے کے لیے۔ آج کا دوسرا ورد کولوسیوں کے نام مقدس پولس رسول کا خط، چوتھا باب دوسری آیت سے 6 آیت تک۔ پرانی بائبل میں صفحہ نمبر 195 195، نئی بائبل میں صفحہ نمبر 276 276۔ کولوسیوں کے نام مقدس پولس رسول کا خط، چوتھا باب دوسری آیت سے 6 آیت۔ اگر آپ کسی کو تلاوت کرنا چاہیں بھی موقع ہے، کہاں دکھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم زبور نمبر 85 کی 2 آیتیں گائیں گے۔ میں گل خدا کی سنا گا جب کرے گا کلام۔ پھر ہم مقدس لوکا کا انجیلی بیان سنیں گے، 10واں باب پہلی ایسے 9ویں آیت۔ خدا ان کے خادم پادری نیلسن کلام کی تلاوت ہمارے لیے کریں گے۔ مقدس لوکا کی بات لکھی انجیل 10واں باب پہلی 9 آیتیں، صفحہ نمبر 63 پرانی بائبل میں 63 اور نئی بائبل میں صفحہ نمبر 98۔ تینوں حوالے آج صبح میری اور آپ کی نصیحت کے لیے ہیں۔ لحاظ میں شادی کی پکاریں 17 اکتوبر پوری دنیا میں عالمی سطح پر غربت کے خاتمے کا دن ہے۔ جتنا اس میں کام ہوتا ہے اتنی ہی غربت کی جو لکیر ہے وہ نیچے جاتی ہے، غربت بڑھ رہی ہے۔ ہم ایسے لوگوں کے لیے جو مشکل کا شکار ہیں، پریشانی میں ہیں، بے گھر ہیں، پنچال یا زلزلے کی وجہ سے بے گھر ہیں، ان کے لیے بھی دعا کی ضرورت ہے تاکہ لوگ اس زندگی کو جو خدا نے دی ہے اچھے طریقے سے بسر کر سکیں۔ آج کا دن ایک خاص دن ہے۔ کل آنے والا دن مقدس لوکا جو انجیل نویس ہے اس کا دن ہوگا۔
15 अक्टूबर योम बसारत का दिन था। हम इसके लिए खुदा का शुक्र अदा करें, हम दुआ करें कि खुदा हम इस हारी की आंखें खोले। हम आंखें रखते होंगे लेकिन देख नहीं सकते मौजूदा हालात को। जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि नाफरमानी की सबब से, बेरहमी की सबब से दुनिया में मुश्किलात है और बेयकीनी नाउमीदी की ज़िंदगी लोग बसर कर रहे हैं। मैट्रिक और एफ ए का रिजल्ट निकल चुका है, आ गया है। कुछ देर के बाद मैं अनाउंस करूँगा, जो बच्चे आए होंगे हम उनकी हौसला अफजाई करेंगे, जो नहीं आए वो रह जाएंगे, क्योंकि जो बच्चा रेगुलर टेस्ट में आता ही नहीं है फिर उसकी हौसला से अफजाई की जरूरत नहीं है। इसलिए ये बात याद रखिए, वालिदैन को मुबारकबाद देते हैं, हम खुशी का इजहार करते हैं कि खुदा ने बच्चों को कामयाबी अता की है। आज PFES, अगर चर्च का कोई जवान मुझे PFES का मतलब बता दे, ताकि जो PFES के लोग स्टाफ यहाँ बैठे हैं उन्हें पता चले कि उनकी खिदमत कितनी मुअस्सर है और लोग इनसे बाखूबी वाकिफ हैं। कोई नौजवान, मिस्टर उबैद खुदा उनके खादिम हैं, वो आ जाएंगे, और बहन जूलिया, भाई फिलिप अभी नहीं आया, आप दोनों आ जाए, हम आपको वेलकम करेंगे। आप आ जाइए, भाई फिलिप आ गया, ठीक है, भाई फिलिप आप भी आ जाए। भाई फिलिप डायरेक्टर है PFES के, इनके साथ स्टाफ है। अभी मैंने जो शादी की पुकारें दी हैं, कितने लोग आए हुए हैं जिनकी शादी की पुकारें हो रही हैं? कुछ शादी की पुकार सुनने के लिए आया है? जिसकी शादी की पुकार दी गई है वालिदैन आए होंगे, ठीक है। ये पूरा स्टाफ है जो PFES, मैं जानबूझ के भी नहीं बता रहा, इसका मतलब मैंने आपसे पूछना है, आप इनके लिए तालियां बजाएं। कोई जवान बताएगा? माइक के आगे आ गया, उसको नाम देंगे आगे। चर्च का जवान, अब ये लम्हा फिक्री है, चैलेंज है भाई फिलिप आप चारों के लिए, कि ये चर्च जहाँ PFES की जड़ें हैं, आपने बड़ा काम किया यहाँ पे। 1985, 36 ईयर्स पहले की बात है। मैं CF को चलाता था, बिशप इरफान जमील PFES में थे, बहन सिल्विया सुहेल वो भी PFES में थी, कैंपस क्रूसेड फॉर क्राइस्ट, सेक्रेटरी यूनियन, ये सारी तंजीमें काम करती थी, हम मिल के करते थे। यहाँ हमने इकट्ठा प्रोग्राम किया, उस वक्त इस चर्च की छत जो थी ना, वो चांदी की छत थी, बारिश होती थी, आवाज़ आती, ठीक है। इन तंजीमों ने चर्च की ग्रोथ के लिए काम किया। तो अगर आज आप में से कोई नौजवान PFES का मतलब नहीं बता सकता तो हमारी कमजोरी है ना, हमने काम नहीं किया, ठीक है। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप इस स्टाफ के लिए जो आज हमारे पास आए हैं, हम उन्हें दावत देते हैं कि जब वो चाहें सेंट जॉन चर्च में आएँ और PFES की खिदमत को लोगों तक पहुँचाएँ। आज मैं ज़्यादा मौका आपको दूंगा, मैं 5 मिनट का मैसेज दूंगा सर। अभी तक किसी जवान ने हाथ नहीं उठाया, ठीक है। और ये मैं अब इन पे छोड़ देता हूँ, ये आज 0 से शुरू करेंगे कि PFES है क्या, ठीक है। ये भाई फिलिप जब आएंगे मिनिस्ट्री शेयर करेंगे, फिर वो आप सबको बताएंगे। अभी मौका है कि हम सेक्रेटरी साहब आप आए, माला गिफ्ट करवाएं, शाबाश। एक और गिफ्ट है इस जवान के लिए। और कौन आया अपनी पुकार से देख लिए? विदेश नहीं आई। अब जो नहीं आए पुकारे सुनने, इनका विधान मैं बड़े फर्क तरीके से करूँगा, ठीक है। भाई फिर आप आए, इस बच्चे को ये जो परफेक्ट में पास हुआ है, आप हमारी तरफ से इसको इनाम दें, क्योंकि स्टूडेंट्स में आप काम करते हैं, नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए तालियां बजाएं ताकि
10th में पास हुए। हम इनके लिए दुआ ख्याल करते हैं, इनके वालिदैन के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। अपना हाथ बढ़ा इन बच्चों को तालीम और इल्म हासिल करने में कामयाबी से हमकनार करता है, ताकि ये बच्चे बाइज्जत ज़िंदगी गुजारने के काबिल बने। कलीसियाओं में इनके वसीले से रूहानी बेदारी है और ये बच्चे हमेशा तेरे खौफ में रहकर ताबेदारी फर्माबरदारी आगे बढ़े और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने का वसीला है। इन बच्चों को बेनारवी से बचा, ताकि ये हमेशा क्रिश्चियन वैल्यूज को सामने रखते हुए आगे बढ़े और इनके किरदार से, उनकी गुफ्तगू से तेरा बेटा यीशु जलाल खुदा बाप बेटे और उसके नाम से खुदावंद आसमानी बात शुक्र तेरे नाम की तारीफ करते हैं कि जब बच्चे तालीम और इल्म हासिल करते हैं तो उन्हें बाइज्जत रोजगार भी अदा करता है। ये बच्ची जब वालिदैन को, हम सबको, कलीसिया के लोगों को इनसे जब जुदा होती है, सऊदी अरब जाती है, ऐसे लोगों की खिदमत करती है जो जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हैं, बीमार हैं, इस बच्ची को दराज़ी उम्र अता करना, सेहत और तंदुरुस्ती देना, ताकि खिदमत का ये काम जो तूने इसकी सुपुर्द किया है आसान तरीके से, ध्यानदारी के साथ, मेहनत के साथ कर सके। वालिदैन को दुआ का फजल अता फरमा, ये बच्ची सलामती के साथ वहाँ जाए और वहाँ का माहौल इसके लिए साजगार हो, वहाँ का मौसम इसके लिए साजगार हो। वालिदैन को मुबारकबाद देते हुए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, दुआ करते हैं खुदा तो सारे बच्चों को, सारे नौजवानों को दराज़ी उम्र सेहत और तंदुरुस्ती दे, ताकि बच्चे बाइज्जत ज़िंदगी गुजारने के काबिल बने और अपने वालिदैन की ताबेदारी और फर्माबरदारी करें, ताकि ज़मीन पर इनका भला हो। इनकी उम्र को दराज कर, अनमोल के लिए खास दुआ करते हैं, इसके माथे पर खुदा बाप बेटे और उसके नाम से स्लीप की मोहर लगाते हैं और दुआ करता है खुदा ये बच्ची जहाँ कहीं जाती है इसके साथ साथ है, इसे दराजी उम्र दे और आने वाले वक्त में ढेरों खुशियाँ दे। खुदा बाप बेटे और इसके नाम से थैंक यू बेटे। फिर चांदी साहब पता ना आपको हर इतवार आज नहीं गई, नहीं लगी, अपना हक मांगा है बड़े तरीके से, ठीक है। एक शख्स भाई दाऊद खड़े हो जरा, ये गया प्रोटेस्ट करने, इनके लिए तालियां बजाएं। थैंक यू। बराए मेहरबानी जितनी चर्च की एक्टिविटीज़ हैं इसमें जरूर हिस्सा लिया करें। हम PFS के सारे स्टाफ के लिए खुदा शुक्र अदा करते हैं। हम चाहते हैं कि नौजवानों में खिदमत का काम किया जाए ताकि ये नौजवान आगे बढ़े। आए हम कलाम मुक़द्दस की ताउस से यशायाह नबी का सहीफा, उसका 38वां बाब, पहली 8 आयत हम पढ़ेंगे। उन्हीं दिनों में हिजकिय्याह ऐसा बीमार पड़ा कि मरने के करीब हो गया, और यशायाह नबी आमोज के बेटे ने उसके पास आकर उससे कहा कि खुदावन यूँ फरमाता है कि तू अपने घर का इंतज़ाम कर दे, क्योंकि तू मर जाएगा और बचने का नहीं। तब हिजकिय्याह ने अपना मुंह दीवार की तरफ किया और खुदावन से दुआ की और कहा है, खुदावन मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, याद फरमा मैं तेरे हुजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूँ और जो तेरी नज़र में भला है वही किया है। और हिजकिय्याह जार जार रोया। तब खुदावन का कलाम यशायाह पर नाज़िल हुआ कि जा और हिजकिय्याह से कह कि खुदावन तेरे बाप दाऊद का खुदा यूँ फरमाता है कि मैंने तेरी दुआ सुनी, मैंने तेरे आंसू देखे, तो देख मैं तेरी उम्र 15 बरस और बढ़ा दूँगा और मैं तुझको और इस शहर को शाह असूर के हाथ से बचा लूँगा और मैं इस शहर की हमारे
करूँगा। और खुदावंद की तरफ से तेरे लिए ये निशान होगा कि खुदावंद इस बात को जो उसने फरमाई पूरा करेगा। एक मैं आफताब के ढले हुए साए के दर्जों में से आपस के धूप घड़ी के मुताबिक 10 दर्जे पीछे को लटा दूंगा। चुनांचे आफताब जिन दर्जों से ढल गया था उनमें के से 10 दर्जे फिर लौट गया। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आज का दूसरा वर्ष गुजारी के साथ उसमें बेदार और साथ साथ हमारे लिए भी दुआ किया करो कि खुदा हम पर कलाम का दरवाजा खोले ताकि मैं मसीह के उस वेद को बयान कर सकूं जिसके सबब से कैद भी हूं और उसे ऐसा जाहिर करूं जैसा मुझे करना लाजिम है। वक्त को गनीमत जानकर बहने वालों के साथ होशियारी से बर्ताव करो। तुम्हारा कलाम हमेशा ऐसा पुरफज़्ल और नमकीन हो कि तुम्हें हर शख्स को मुनासिब जवाब देना आ जाए। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा सुना जाना हम सबके लिए बाइस बरकत। ज़बूर नंबर 85 की पहली दुआ याद कर जाएंगे। मैं कल खुदा की सुनागा जब करेगा कलाम ते होते अपने बंदे नाल पाक लोग का नाम तमाम। अपने आप को कल का काम सुनने के लिए तैयार करेंगे। ज़बूर नंबर 85 मैं कल खुदा की सुनागा जब करेगा कलाम गल करेगा जो उसकी बात है सुरा साफ दी है मुक्ति नेड़े उन्हां दे जो रखते सर ता सारी धरती साडी भी जलाल ना होवे कर।
हमारे लिए आज की तीसरी तिलावत मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी इंजील उसका 10वां बाब पहली 9 आयत। इन बातों के बाद खुदावंद ने 70 आदमी और मुकर्रर किए और जिस जिस शहर और जगह को खुद जाने वाला था वहाँ उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। और वो उनसे कहने लगा कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के मालिक की मिन्नत करो कि अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेजे। जाओ, देखो मैं तुमको गोया बर्रों को भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। ना बटवा ले जाओ, ना झोली, ना जूतियाँ, और ना राह में किसी को सलाम करो। और जिस घर में दाखिल हो पहले कहो कि इस घर की सलामती हो। अगर वहाँ कोई सलामती का फर्जंद होगा तो तुम्हारा सलाम उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम पर लौट आएगा। उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले खाओ पियो, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। घर घर ना फिरो, और जिस शहर में दाखिल हो और वहाँ के लोग तुम्हें कबूल करें तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए खाओ, और वहाँ के बीमारों को अच्छा करो और उनसे कहो कि खुदा की बादशाही तुम्हारे नज़दीक आ पहुँची है। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। मैं ईमान एक खुदा कादिर मुतलक बाप पर जो आसमान और ज़मीन सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है, और एक खुदा की सूची पर जो खुदा का इकलौता बेटा है, औलादों से बेशतर, अपने बाप से मालूम, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मालूम, उसका और बाप का एक ही जोड़ है। उसकी मुश्किल से कुछ चीज़ें बनी, वो हम आदमी के लिए और हमारी निजात के वास्ते आसमान पर से उतराया, और उसकी कुदरत से कमवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना, और 35 के हद में हमारे लिए मजलूबी हुआ। उसने दुख उठाया और दफन हुआ, और तीसरे दिन पाक नविश्तों के बाबू जब जी उठा और आसमान पर चढ़ गया और बाप के जगह पर बैठा है। वो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की इबादत के लिए फिर आने वाला है। उसकी सल्तनत खत्म ना होगी, और मैं ईमान रखता हूँ बाप और बेटे से साथ है, उसकी बाप और बेटे के साथ परस्तिश और ताज़ीम होती है। और नबी की ज़बानी बोला, मैं एक पाक आम रसूली कलीसिया पर ईमान रखता हूँ। मैं एक बपतिस्मा का जो गुनाहों की माफ़ी के लिए है इकरार करता हूँ, और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतज़ार करता हूँ। आसमानी बाप, तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे कलाम के लिए जिस वक्त हम सुनने को हैं। तेरा पाक रूह हम सब की रहनुमाई करे, ताकि कलाम मुक़द्दस की इन सच्चाइयों को समझ कर इस समाज में, इस दुनिया में रहते हुए हमारी ज़िंदगियों से, हमारी गुफ्तगू से, हमारे ईमान से, हमारे चाल चलन से लोग जाने कि हम मसीही हैं। कलीसिया के लिए और कलीसिया के ख़ानदान के लिए, हाज़िर जमायत के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ। अपने खादम के मुँह में अपना कलाम डाल, अपने बाप की रहनुमाई दे। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से जमायत बैठ सकती। खुदा का खादिम होते हुए मैं बड़ी आजिज़ी, इंकिसारी के साथ, बड़ी खुशी के साथ आप सबकी खिदमत में इस्लाम अर्ज़ करता हूँ, और दुआ करूँ कि आज का दिन आप सबके लिए बरकत, खुशी, राहत और तसल्ली का सबब है। चूँकि कल आने वाला जो दिन है कलीसियाई कैलेंडर के मुताबिक मुक़द्दस लूका जो इंजील नवीस है, रसूलों के ईमान का मुसन्नफ़ है, उसके बारे में हम जान सकें। मैं बहुत मुख्तसर तौर पे हवाला निकाले ज़रा लूका। आमतौर पे हम बोलते हैं लूका की इंजील, है ना, लूका की मार्फत लिखी गई इंजील। मुक़द्दस लूका का इंजीली बयान है जो इस वक्त चंद अल्फाज जिनमें आपको PFES की खिदमत भी नजर आएगी। 10वां बाब
कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि इन बातों के बाद खुदावंद ने 70 आदमी और मुकर्रर किए, इससे पहले और भी थे, और जिस शहर और जगह को खुद जाने वाला था वहां उन्होंने 2-2 करके अपने आगे भेजा। यहाँ पे जिम्मेदारी जो है उसको बांटे। मैं और आप हर काम खुद करना चाहते हैं, मेरी भी ऐसी आदत है, मैं भी इंसान हूं, खुद करना चाहते हैं। जिम्मेदारियों को जितना बांटेंगे उतना काम बढ़ेगा, उतनी तरक्की होगी, उतने लोग फायदा उठाएंगे। और जब हम मेरे जैसे लोग खुद ही कंट्रोल रखेंगे, अख्तियार रखेंगे, मैं सब कुछ करूं, फिर तरक्की नहीं होगी, तरक्की रुक जाएगी। लीडरशिप को तैयार करना हमारी जिम्मेदारी है, PFES की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन आज का लीडरशिप को तैयार करने के लिए तैयार नहीं है। वो कोई भी हो, पादी मैनुअल होकर हो, कोई बिशप हो, सियासी लीडर हो, मजहबी लीडर हो, हम अपनी कमजोरी के सबब से लीडरशिप तैयार नहीं करते। यीशु मसीह ने और भी थे शागिर्द, 70 आदमी और ले लिए, उनमें से 2-2 को भेजा, जहां से खुद जगह था उनको भेज दिया। और मैं अक्सर यहाँ अनाउंस करता रहता हूँ कि अगर जो लोग खिदमत पे आना चाहते हैं, जरूरी खिदमत नहीं है कि आप आदमी बन के यहाँ खड़े होकर तो आप सुना यही खिदमत है, बड़ी खिदमत है यहाँ, वायर की भी खिदमत, यूथ मिनिस्ट्री की खिदमत, खवातीन की है। मेरे भक्त खवातीन से फिर कहना चाहता हूँ कि शाम 4 बजे जुमेरात की शाम इबादत किया करें। अब टाइम चेंज कर दें, 4 बजे आए, और जो खवातीन नहीं आती आए, आपको बड़ी ज़रूरत है। काम जिंदगी तक आपके खत्म नहीं होने जब तक आपकी जिंदगी है। अपने बच्चों की तरबियत करें, और उस वक्त तक नहीं कर सकती आप जब तक आप सीखते नहीं हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने इससे पहले जब लोग उसके पास आए तो उन्होंने कहा कि मुर्दों को मुर्दे से दफन करने दो, आप आओ मेरे साथ मिलकर खिदमत करें, आगे बढ़े। फिर 70 लोग लिए, फिर 2-2 को भेजा, अपनी जिम्मेदारियां तकसीम कर दी, उनके जिम्मे काम लगा दिए, और उनसे कहने लगा कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े। फसल अब भी बड़ी है, मजदूर फसल से भी ज्यादा है इस वक्त आज के दौर। आपकी इस एरिया में कोल्हापुर में बहुत मजदूर, लेकिन वो मजदूर दागसाई वाले हैं, वो मेहनत करने वाले नहीं है, उनका बीए नहीं है, उनका बोझ नहीं है कि लोग मसीह के पास आए। पहचान आपने करनी है, तमीज करना मैंने और आपने सीखना है कि कौन सा ऐसा शख्स है जो वाकई शागिर्द बनाने के लिए, यीशु के शागिर्द बनाने के लिए, मसीह के पास लाने के लिए काम करता है। खुली इजाजत दी यीशु ने, सारी दुनिया में जाओ, सारी कौमों में जाओ, इंजील की मनादी करो, लोग ईमान लाए। मनादी करने के साथ तालीम भी ले दो, तालीम के साथ उनकी तरबियत भी करें, और जो ईमान लाए फिर उसको बाप, बेटे और उसके नाम से बपतिस्मा। हम कई दफा जबरदस्ती बपतिस्मा देते हैं अपने डोनर्स को दिखाने के लिए, वो तैयार भी नहीं होते, उन्हें पता भी नहीं होता कि बपतिस्मा है क्या। सादा से लोग थे गाँव के, तो बाहर से जगह खाली थी, जब वो बपतिस्मा ले रहे थे शुरू में बड़ा एक सैलाब आ गया था। फिर खतून देख रही थी, देख के भागती घर गई, अपने मियाँ को कहा चाहे जाकर उसको बचाएं। तो क्या हुआ क्या? उसने कहा वो बेचारी आगे से माफिया मांग रही है, लेकिन वो उसको पानी में डुबो रहे हैं, गोते दे रहे हैं, उसको बचाए जाके। जबरदस्ती वाली जो तौबा है ना आज के दौर में, ये ठीक नहीं है, प्रेशर बन गया। यीशु मसीह ने जिम्मेदारियां बांटी हैं, शागिर्द बनाए, जो ईमान लाए उसे बाप, बेटे और रूह उसके नाम से बपतिस्मा दे। फसल बहुत है, मजदूर कम है, सही मजदूर कम है। वो मजदूर हैं जो कहते हैं कि बस दिहाड़ी में से काम ना करना पड़े। ऐसे मजदूरों से
تو گریز کرے. تو یسوع نے کہا جاؤ. ٹرسٹ کیا, اعتماد کیا, دیکھو میں تم کو گیا بروں کو بھیڑیوں کے بیچ میں بیچتا ہوں. آج کا دور ایسا ہی ہے, آج کا دور ایسا ہے. اس لیے کرسیوں کے خط سے جو میں نے پڑھا ہے, مجھے اور آپ کو ہر شخص کے ساتھ بات کرنے کا ڈھنگ آنا چاہیے, طریقہ آنا چاہیے, تمیز ہونی چاہیے. منادی کے بھی ایونجلزم کے بھی اصول ہوتے ہیں, گفتگو کے بھی آداب ہوتے ہیں. ہر چیز کو پھیلانے کے لیے, منادی کرنے کے لیے, کسی کو مسیح کے پاس لانے کے لیے میتھڈ ہے, طریقے ہیں. تو یسوع مسیح نے سادگی کے ساتھ انہیں کہا جاؤ, میں آپ کو آسان کام نہیں دے رہا, مشکل کام دے رہا ہوں. آپ تو کر رہے ہیں, بڑا دیکھا کبھی کسی نے نہیں دیکھا. بڑی چیزیں آپ نے دیکھی ہوئی ہیں, چنگیاں مندیاں تو لکھ رہا ہے, چیزیں دیکھی. بھیڑ کے بچے کو برا کہتے ہیں, اور یسوع مسیح نے اپنے بارے میں بھی کہا, اور یوحنا نے تو پہلے کہتے ہیں دیکھو یہ خدا کا برا جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. ساری دنیا جس پر ایمان لاتا ہے وہ شخص گناہ سے ذاتی رہائی اور چھٹکارا حاصل کرتا ہے. اس نے کہا آپ تو بڑے ہیں, میں آپ کو بھیڑیوں میں بھیج رہا ہوں جو آپ کو پھاڑیں گے, جو آپ کو تباہ کریں گے. لیکن ڈرنا نہیں ہے, میں بھیڑیوں میں آپ کو بھیج رہا ہوں. آج کی دنیا, اس وقت کی دنیا, اس سماج میں جہاں آپ اور میں رہ رہے ہیں, جس دور میں سے میں اور آپ گزر رہے ہیں, یہ کوئی اچھا دور نہیں ہے. میں مثال دوں گا. پھر ماڈل ٹاؤن میں 2 نوجوان ایونجلزم کر رہے تھے, جنونی تھے, پکڑے گئے. بلاسفیمی کا ان کے خلاف پرچہ ہوا, اور خدا کے کلام میں لکھا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہر کام کا طریقہ ہے. اور یسوع نے ان سے کہا کہ نہ بٹوا لے جاؤ, نہ چولی, نہ جوتیاں, نہ راہ میں کسی کو سلام کرو. آج کے دور میں, ماڈرن دور میں آپ کو ایسا خادم ملے گا؟ مجھے کو کہ میں بھی نہیں ایسے کروں گا, میں بھی اپنا بیگ تیار کر کے جاؤں گا جہاں جاؤں گا. پہلے جن لوگوں نے خدمت کی ہے ان لوگوں نے ننگے پاؤں بھی کام کیا, ایک قمیض میں, ایک کرتے میں بھی کام کیا. ان کو کھانے پینے کی فکر نہیں ہوتی تھی, وہ جاتے تھے سادھو سندر کی طرح, سادھو سندر سے جاتے تھے اور منادی کرتے تھے, مشکلات اٹھائی. کہا کہ یہ چیزیں جن کی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ نہ لے کے جانا, کیوں اجازت نہیں دی؟ وجہ کیا تھی؟ سادہ بات ہے, بٹوے کی بھی ضرورت ہے, جوتیوں کی بھی ضرورت ہے, لیکن اس نے کہا نہ بٹوا لے جاؤ, نہ جھولی, نہ جوتیاں, نہ راہ میں کسی کو سلام کرو. جس گھر میں داخل ہو پہلے کہو کہ اس گھر کی سلامتی ہو, سلامتی آ جائے اس گھر میں, اس لیے کہ تم میرے لوگ ہو, میں تمہیں برکت دے کر بھیج رہا ہوں. اگر کوئی سلامتی کا فرزاد ہوگا تو تمہارا سلام اس پر ٹھہرے گا, نہیں تو تم پر واپس لوٹ آئے گا. کئی گھروں میں, خاندانوں میں ایسا ہوتا ہے, کتوں آ گئے پادری صاحب. اس لیے میں اس کے خلاف اس بات کی, اور کلام میں بھی لکھا ہے گھر نہ جاؤ, اور آپ لوگوں کی بھی عادت بن کی ہوئی ہے. پادری صاحب آ کے دینا کچھ دینا ہے, نہیں تو آپ کی ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ شاید دینے کے لیے آئے. اس بات کو بھول جائیں, چھوڑ دیں ان باتوں کو. وہ تو خدا کا خادم جب آپ کے گھر میں آ جائے گا نا, صحیح خادم آپ کے گھر میں ویسے سلامتی آتی ہے, اس لیے کہ وہ اس کا بھیجا ہوا ہو, وہ خود نہیں آیا ہوگا, اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ خود آپ کے گھر جائے. اسی گھر میں رہو اور جو کچھ ان سے ملے کھاؤ پیو, کیونکہ مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے. گھر نہ دو. آپ کے گھروں میں آتے ہیں جن کے بارے میں آپ کو منع کرتا ہوں نا, آپ ضد کے ساتھ ان کو بلاتے ہیں آپ کے گھر. میں دلیری سے کہتا ہوں, آپ کے گھروں میں آتے ہیں جن کا حق ہی نہیں ہے,
کہ وہ آئے، وہ اس کے شاگرد نہیں ہے صحیح طرح سے، انہوں نے اپنے کردار سے اپنے کام خراب کیے ہیں، آپ پھر بھی ان کو گھر بلاتے ہیں، آپ پھر ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، پھر آپ خراب ہوتے ہیں۔ گھر گھر نہ پھرو، جس شہر میں داخل ہو وہاں کے لوگ تمہیں قبول کریں تو جو کچھ تمہارے سامنے رکھا جائے کھاؤ، اور وہاں بیماروں کو اچھا کرو، ان سے کہو کہ خدا کی بادشاہی تمہارے نزدیک آ پہنچی ہے۔ لیکن جس شہر میں داخل ہو وہاں کے لوگ تمہیں قبول نہ کریں تو اس کے بازاروں میں جا کر کہو کہ اس گند کو بھی، ڈسٹ کو بھی جو تمہارے شہر سے ہمارے پاؤں میں لگی ہے تمہارے سامنے جھاڑ دیتے ہیں، مگر یہ جانو کہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ پہنچی ہے۔ چھوڑ دے ساری باتیں، مین ٹروتھ مرسی آئے اس حوالے کی، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اس دن سدوم کا حال اس شہر کے حال سے زیادہ برداشت کے لائق ہوگا۔ کوئی بندہ اس آیت کو سمجھا؟ میں آپ کو موقع دیتا ہوں بولے، دوبارہ پڑھ رہا ہوں۔ سدوم اور عمورہ کے شہر کے بارے میں واقف ہیں، وہاں آگ برسی تھی اور لوگوں کی برائی کے سبب سے، ان کے گناہوں کے سبب سے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اس دن جب عذاب ہو جائے گا، ہوگا، سامنے کھڑے ہوں گے، سدوم کا حال اس شہر کے حال سے زیادہ برداشت کے لائق ہوگا۔ کس شہر کا؟ جو آج ہمارے شہر کا حال ہے، ہماری بستی کا حال ہے، ہمارے ایریے کا، ہماری کلیسیوں کا حال ہے۔ مصنوعی ہر چیز، آرٹیفیشل ہر چیز، گفتگو مصنوعی، روحانیت مصنوعی، اداکاری زیادہ، وفاداری کم۔ یہ آج کا دور ہے جس دور میں سے آپ اور میں گزر رہے ہیں۔ یہ ساری وبائیں، ساری بیماریاں اس وقت بھی تھی۔ ابھی یسایا نبی کے صحیفے سے حزقیہ کے بارے میں لکھا، جب وہ بیمار پڑ گیا تو وہ پریشان ہو گیا تھا۔ ہر شخص جو بیمار ہوتا ہے، پچھلے ہفتے میں کئی بیمار ہوئے، آپ میں سے کئی لوگوں کو ڈینگی بھی ہوا، بخار بھی ہوا، مجھے بھی بخار ہوا۔ ہم کیا سوچتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا، میں مرتے نہیں جا رہا، بچا گا کہ نہیں بچا گا۔ اور بھائی ہاں، اگر ایسی بات ہے تو پھر اپنے آپ کو تیار کریں کہ اس کے لیے بھی کہا میں نے بڑے کام کرنے ہیں، خدا یہ تم نے کیا کر دیا ہو، میں تو بھی بہت کام کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن اس نے دل سے اقرار کیا، کھولے در کیا کہا اس نے؟ لمبی دعائی کی، زبان نہیں بولی اس نے کوئی بھی، بالکل نہیں، کچھ نہیں اس نے کیا۔ وہ سرتپا ویسے ہی تبدیل ہو گیا۔ مرنے کے لیے کوئی شخص تیار نہیں ہے، میں بھی نہیں ہوں، آپ بھی نہیں ہیں، لیکن پھر ایسے کام کریں کہ وہ آیت آپ پہ فٹ آ جائے کہ خدا پھر ان کی عمر کو دراز کر دیتا ہے۔ کن کی؟ بولو جو آلو بھائی، بوائل آ رہے اور جو آپ صحیح جواب ابھی نہیں آیا، شاباش، تھینک یو۔ جو اپنے والدین کی، جو اپنے بڑوں کی، جو اپنے بزرگوں کی عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، زمین پر، اس زمین پر خدا اس کا بھلا کرتا ہے، اس کی عمر دراز ہو جاتی ہے، لمبی عمر ہو جاتی ہے۔ تابعداری اور فرما برداری بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے وہاں پہ خدا سے کیا کہا؟ اپنا منہ دیوار کی طرف کر دیا۔ مطلب کیا تھا؟ چھپایا تھا اپنا منہ کہ میں، مجھ سے غلطی خطا قصور گناہ ہوئے ہیں، لیکن اے خداوند میں تجھ سے التجا کرتا ہوں، منت کرتا ہوں۔ صرف اس نے دعا کی ہے۔ اب اس کا غلط مطلب نہ لے لینا۔ کل پرسوں کو مجھے بتا رہا تھا جی کہ وہ بڑا بیمار سا میں، انہوں نے کسی خادم نے کہا کہ بس تو دوائی چھڑ دے، دوائی چھڑ دے، دعا نہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ میں کہا بھائی تو نہیں ٹھیک ہوگا، مر جائے گا۔ اب میں نے کہا نہیں ٹھیک ہوگا، اور دوائی ضروری ہے، دوائی بھی کھا۔ یہ بھی مجھے اور آپ کو نہیں پتا چلتا کہ یہ لوگ ہمیں کیا کر رہے ہیں۔ چھوڑ دے دوائی، ٹھیک ہو جائے گا دعا سے۔ میں نے کہا یہ غلطی نہ کرنا، پہلے بڑے لوگوں نے غلطی کی ہے، اور جا کے سو رہے ہیں خاک میں۔ کبھی ایسے نہ کرنا، جنونی نہ بننا۔ یسوع نے کسی کو جنونیت نہیں سکھائی،
खुदा ने यहाँ पे खुद अपना बंदा भेज दिया हिजकिय्याह के पास। जब हिजकिय्याह ने दुआ की, दरखास्त की, मिन्नत की, चंद अल्फाज में सुन लें, तब हिजकिय्याह ने अपना मुंह दीवार की तरफ किया, खुदा उससे दुआ करता है, खुदा मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, याद फरमा कि मैं तेरे हुजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा। बताए आप में से कौन है? मैं सबसे पहले इकरार करता हूँ। उसके बचने का वजह क्या थी कि वो सच्चाई से चलता रहा। मैं और आप सच्चाई से नहीं चलते, पूरे दिल से, और जो तेरी नजर में भला वही किया। खुदा जो कुछ तेरी नजर में बना था वो मैंने आज तक किया, सच्चाई के साथ चलता रहा, ज्यादती नहीं की किसी के साथ। तू मुझ पर रहम कर। सारी बातें छोड़ दे। फिर हुआ क्या? एंड में 21वें आयत देखिए, छोड़ दे। हुआ कि खुदा की हुजूर अपनी दरखास्त मिन्नत रख दी, मुख्तसर सी। खुदा ने भी उसको कहा, चाहे मैंने तेरी दुआ सुनी, मैंने तेरे आंसू देखे। हमारे आंसू भी आर्टिफिशियल होते हैं, मसनूई होते हैं, जेन्युइन नहीं होते, सच्चाई के साथ नहीं। और खुदा ने जब उसकी दुआ को सुना और कहा, जा मैंने तेरी दुआ सुनी, तेरे आंसू देख लिए, तो फिर उसने यशायाह से कहा, अंजीर की टिकिया ले। यशायाह उसके पास दोबारा आया, हिजकिय्याह अंजीर की टिकिया ले ले, फोड़े पर मार दे, वो शिफा पाएगा। और हिजकिय्याह ने कहा था, इसका निशान है कि मैं खुदा के घर में जाऊंगा। दवाई दे दी उसे, अब मेडिसिन दे दी उसे। उस दौर का शायद ये कैंसर था, उस दौर का कैंसर था ये। दुआ के साथ दवाई, ये दोनों चीजें लाजमी हैं। लेकिन मैं फिर खुदा का खादिम होते हुए ये कहना चाहता हूँ कि जो खुदा का बंदा, खुदा का खादिम लूका, जिसका कल आने वाला दिन है, ये तबीब था। कलाम में लिखा है कि बीमार को तबीब की जरूरत है। ये गैर यहूदी बंदा था, यहूदी नहीं था, नौमरीद आदमी था, मुहज़्ज़ब आदमी था, यूनानी बंदा था, मेडिसिन से वाकिफ था। रसूलों के अमाल की किताब इसने लिखी है। रसूल उसके बारे में बहुत कुछ कहते हैं कि ये शख्स बड़ा दिलकश किरदार का मालिक था। और उसने ये खिदमत इतनी की कि फिर यूनानी लोगों ने इसी शख्स को, खुदा के बंदे को शहीद कर दिया। अब मेरे लिए और आपके लिए सबक क्या है? कुर्सियों के खातिर दुआ में मशगूल और शुक्रगुजारी के साथ उसमें बेदार रहो। दुआ में मशगूल, मुसलसल लगातार दुआ करते रहो। मैं और आप नहीं करते, आप मशगूल रहते हैं और बड़े काम है हमारे। मैं और आप तो फेसबुक भी नहीं छोड़ते, मुसलसल देखते हैं। मैं और आप तो व्हाट्सएप भी नहीं छोड़ते, मुसलसल देखते हैं। मैं भी ऐसा दुआ करने में मशगूल। हमने ये सारी चीजें क्रिश्चियन वैल्यूज को छोड़ दिया। दुआ करने में मशगूल, शुक्रगुजारी के साथ उसमें बेदार हो, और साथ साथ हमारे लिए भी दुआ किया करो। खुदा के खादमों के लिए भी, PFS के लिए भी, पैराचर्चेस के लिए भी, जो चर्च की ग्रोथ के लिए काम करते हैं, खुदा के खादमों के लिए भी दुआ किया करें। इनको दुआ की बड़ी जरूरत है, हमें बड़ी जरूरत है। जितनी हमसे गलतियां हो रही है ना, खुदा माफ करें। लीडर्स को बहुत ज्यादा जरूरत होती है। लीडर परवाह नहीं करता, उसको सारा कुछ पता होता है, लेकिन उसके बावजूद वहां जाता है। दुआ किया करो। खुदा का कलाम, खुदा हम पर कलाम का दरवाजा खोले ताकि मैं मसीह के उस भेद को बयान कर सकूं जिसके सबब से कैद हूं, और उसे ऐसा जाहिर करूं जैसा मुझे करना लाजिम है। जो आपकी जिम्मेदारी है वो वफादारी के साथ करें। वक्त को गनीमत जानकर, वक्त हाथ से गुजर जाता है। वक्त इतना अच्छा है, जैसा भी हो, बुरा क्यों ना हो, अच्छा क्यों ना हो, गुजर जाता है। कोरोना का दौर गुजर गया, मुश्किल तो ही है, परेशानी तो ही है, लेकिन आस्ता आस्ता वक्त गुजर गया। ये डेंगू आ गया दोबारा, एहतियात कीजिए, ये भी गुजर जाएगा। वक्त की यही एक सिफ्त है कि वो गुजर जाता है। वक्त को गनीमत जानकर बाहर वालों के साथ होशियारी से बर्ताव करो। इस दौर में
होशियारी से बर्ताव करो। तुम्हारा कलाम, तुम्हारी गुफ्तगू, तुम्हारा किरदार हमेशा ऐसा पुरफज़ हो, नमकीन हो कि तुम्हें हर शख्स को मुनासिब जवाब देना आ जाए। हमें मुनासिब जवाब देना भी नहीं आता होता, बोलते बोलते। सबब क्या है, वजह क्या है? और ज़्यादा बोलने की वजह से खताई करते हैं, और खताई करने की वजह से नाराज़गियाँ बढ़ती हैं, नाराज़गियाँ बढ़ने की वजह से एक दूसरे से हम दूर हो जाते हैं। लेकिन खुदा का कलाम मुझे रफ़्त सिखाता है, रफ़ाकत, कहते हैं कि रफ़ाकत रखनी है बड़ी ज़रूरी, रखा करें ख़ानदानों के साथ। हम आजकल रफ़ाकत नहीं रखते, हमारे काम बड़े हैं, हम एक दूसरे की परवाह नहीं करते। पर जब कोई मर जाता ना, फिर आते हैं दौड़ के, बाप के सारे काम छोड़ के, फिर आके हम कहते हैं चलो हम देखो गल कर भाई, उन्होंने की गल करनी है, जो गल करन जो उसके पास आए नहीं है, उसका आपने फिक्र नहीं किया, उसकी तीमारदारी नहीं की, उसके साथ आकर बातचीत नहीं की, अब क्या करेगा वो? इसलिए खुदा के कलाम के मुताबिक दुआ में मशगूल रहे, खुदा के खौफ में ज़िंदगी गुजारें, एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे के साथ शेयर करें, एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे से खुशी मोहब्बत रखें, और अपनी ज़िंदगी के तमाम लम्हात को जो खुदा आपको दे रहा है इंजॉय करें। खुदा इस कलाम के वसीले से आप सबको करते हैं। आए हम खुदा की तारीफ करें, क्योंकि वो मेहरबान खुदा है। मिसेस एजाज, आप दोनों हदिया पीछे जाएँ, आपको हदिया की थैलियाँ दे देंगे, आप दोनों जाएँ। नहायत रहीम है खुदा, मेहरबान मेहरबान मेहरबान। मिसेस एजाज, आप दोनों जाएँ। Oh
कुद्दूस आसमानी बाप, जिसने अपने प्यारे बेटे के खून के वसीले से हमारे लिए नई और जिंदा राह मखसूस की है, जिससे हम तेरे तख्त के पास आ सकते हैं, क्योंकि हम नालायक हैं, फिर भी हम उसी के वसीले से तेरे पास आते हैं। बड़ी आजिज़ी की सारी हरीबी फरोतनी के साथ उससे विनत करते हैं, इन हदियों को, नजरानों को, शुक्रगुजारियों को, मन्नतों को, मन्नजातों को अपने ज़िक्र कबूल फरमा, और हम सबको कदार शरीफ फहम दे, ताकि इस हदिये का इस्तेमाल तेरे जलाल के लिए कर सकें। सारी चीज़ें तो तेरी तरफ से मिलती हैं और तेरे दिए भी सब चीज़ें वापस मिलाते हैं। अपना हाथ बढ़ा, सदिये के तस्कर और देने वालों को बरकत दे, इनके विसाइल में गुस्सा दे, उनकी रोटी पानी पर बरकत डाल, खुदा बाप, बेटे और उनके उसके नाम से जमायत बैठ जाए। शहरबानी की तरतीब की किताब सफ़ा नंबर 14, आइए स्वैच्छिक सरदार का है, जैसे तो अपने शागिर्दों के बीच में था, वैसे ही हमारे दरमियान हाजिर हो रोटी तोड़ते वक्त अपने आप को हम पर जाहिर कर। आइए इसको अपने रूह के वसीले से हम सबको इस रोटी की रस्म की भी तकदीस कर, ताकि हमारे लिए तेरा बदल और तेरा खून बन जाए, क्योंकि तेरे वसीले से आई यीशु की रूह बाग के पास हम सब की रसाई होती है। खुदा तुम्हारे साथ हो, अब अपने दिल में बाला पर लगाओ, अब अपने खुदा का शुक्र करें। ये नहायत वाजिब बना सबर हम सब पर फर्ज भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। आए खुदा मुक़द्दस बाप, कादिर मुतअल रज़ली खुदा, हम तेरे बेटे अपने निजात दहिंदा खुदा यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, निजात के बड़े बंदोबस्त के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, तमाम मसीही ऑर्गेनाइजेशंस के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, तमाम अदारों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, मुल्क पाकिस्तान के लिए हुक्मरानों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, डायस ऑफ प्राइवेट के लिए, बिशप ऑफ प्राइवेट के लिए, चर्च ऑफ पाकिस्तान के लिए, मॉडरेटर चर्च ऑफ पाकिस्तान के लिए, आलमगीर के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस वास्ते फरिश्तों और मुकर्रर फरिश्तों सब बोले वाकई कदूस, वाकई मुबारक है तू आसमानी बाप, तो जिसने अपने इस बड़ी शफ़क़त से जो इंसान की तरफ है अपने पोते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फिदिया देने के लिए इसलिए पर मौत गवारा करे। उसने इस पर अपने आप को एक ही बार नजर चढ़ाकर कुल जहान के गुनाहों की पूरी काबिल और काफ़ी कुर्बानी नज़्र और मुआवजा दिया। हम उसके दो फरमानों को तेरे सामने याद करते हैं, तो उसकी कुर्बानी की याद करके हम सब पर रहम कर, बीमारों पर रहम कर, गमज़दा लोगों पर रहम कर, बेघर लोगों पर रहम कर, बेरोज़गार लोगों पर रहम कर, बेऔलाद लोगों पर रहम कर, हम सब पर, आलमगीर कलीसिया पर, तमाम लीडर्स पर रहम कर। उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं फिर ना हो तुम ऐसे ही करते रहना। जिस रात को पकड़वाया गया उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसी तरह खाने के बाद प्याला भी इस अपने हाथ में लिया, शुक्र करके उनको दिया, कहा तो तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नया का ये मेरा खून है जो तुम्हारे बदन के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। जिस तरह हमारे मुनज्जी खुदा की सूची ने हमें हुक्म दिया, हमें सिखाया है, हम सब मिल कर कहें, ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ आज हमें दे और हमारे कसूरों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूर वालों को मुआफ़ करते हैं, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तक दे रही हैं। आए हम खुदा की मेज़ के पास आने की दुआ मिलकर कहें, ऐ रहीम खुदा, हम अपनी रास्तबाज़ी पर नहीं बल्कि तेरी गुनाहों और बड़ी रहमतों पर भरोसा करके
کہ اس میز کے پاس آنے کی جرت کرتے ہیں. ہم تو اس لائق بھی نہیں کہ جو ٹکڑے کی میز پر سے گرتے ہیں چلیں، لیکن وہ خداوند ہے جس کا خاصہ ہمیشہ رحم فرمانا ہے. اس لیے کہ ہم تیرے بیٹے یسوع کا گوشت اس طور سے کھائیں اور اس کا خون اس وجہ سے پئیں کہ ہمارے گناہ درد صبر ہوئیں، اس کے نہایت بے قیمت بدن اور خون سے پاک صاف کی جائیں، اور ہم اس میں اور وہ ہم میں ہمیشہ بسے. وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں پھر حقیقت مسیح کے بدن کی شراکت ہے. اے خدا کے بغیر کیونکہ دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. اے خدا کے بغیر اس مسیح جو ہم سب کا اور ساری دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. اے خدا کے بغیر اس مسیح جو ہم سب کا اور ساری دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. ہم بھی اپنا ہاتھ ایک دوسرے کی طرف بڑھا کر ایک دوسرے کے لیے خدا سے اطمینان مانگیں اور کہیں کہ خدا آپ کو اطمینان عطا فرمائے، خدا آپ کو برکت دے. موقع ہوگا کہ سائڈ کے لوگ اس طرف آئیں گے اور سائڈ کے یہاں پر اور برائے مہربانی ان ترتیب کے ساتھ آئیں. جبکہ ہم ایمان سے بدن اور خون کے پاک ساکرمنٹ میں شریک ہوئے ہیں تو آئیں ہم سب مل کر شکر گزاری کرتے ہوئے کہیں: قادر مطلق خدا ہمارے آسمانی باپ، جس نے ہمیں اپنے عزیز بیٹے یسوع مسیح ہمارے خداوند میں بطور اپنے فرزند قبول کر لیا ہے اور ہمیں اس کے نہایت بیش قیمت بدن اور خون کی روحانی خوراک سے سیر کیا ہے اور ہمیں گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ دیا ہے. ہم ان بخششوں کے لیے جو بیان سے باہر ہیں تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اپنی روح اور اپنے جسم سمیت تیرے حضور نظر گزرانتے ہیں تاکہ پاک اور زندہ قربانی ہو جو ہماری مقبول عبادت ہے. ہمیں فضل بخش تاکہ ہم اس چاند کی ہم شکل نہ بنیں بلکہ عقل کی اور جانب سے اپنی صورت بدلتے جائیں اور یوں تیری نیک اور کامل مرضی سیکھیں اور اس جہان میں اسی طرح تیری فرمان داری کریں کہ ہم آخر میں تیری آسمانی بادشاہی میں تیرے سب مقدسوں سمیت خوشی منائیں. ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے جو تیرے اور قدس کے ساتھ واحد خدا ابدالآباد جیتا اور سلطنت کرتا ہے. آمین. ہم اور تنجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت ابدالآباد ہمارے خدا کی. آمین. آمین. جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دل اور خیالوں کو خدا اور اس کے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کی پہچان اور محبت میں محفوظ رکھے. قادر مدرک خدا باپ، بیٹے اور اس کی برکت ہم سبوں کے ساتھ اور ہم سب کے تمام عزیز و قائب رشتہ داروں، بہن بھائیوں، بچوں، بزرگوں، دوستوں، ہمسایوں، خدا کے خادموں کے ساتھ، PIPS کے سارے اسٹاف کے ساتھ اور تمام آرگنائزیشنز کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہی ہے. خدا باپ، بیٹے اور اس کے نام سے.